Hello everyone, welcome to Learn Logically. Myself Siddharth and I am welcoming all of you to the quick revision classes for upcoming CBSE Board Class 12 examination. We have started from organic chemistry and this is our lecture 2.1, the reaction mechanism addition. In the previous lecture, that means in the lecture 2, we have discussed the basic principles of the reaction mechanism. In that, we have first discussed the definition, that means what is reaction mechanism, then what are the parameters or the factors affect the reaction mechanism, and in the last we have discussed the different types of reaction mechanism. In that particular types, we have discussed there are addition reaction, substitution reaction, elimination reaction and rearrangement reaction, and this is the next lecture, that is the lecture 2.1, the comprehensive study of addition reaction mechanism. Then in lecture 2.2 you are going to see the substitution reaction mechanism. In lecture number 2.3 combiningly we are going to discuss the elimination as well as the rearrangement reaction mechanism. Okay, so now let's begin with the addition reaction mechanism. सबसे पहले एक एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन का मतलब है एक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर जो भी अटैकिंग रिएजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. तो दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मेट ऑफ द एडिशन रिएक्शन. एक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर एक अटैकिंग रिएजेंट हो आएगा जो कि आप लोगों को दोनों को मिला के एक एडिशन प्रोडक्ट आपको देगा. So this kind of reaction is called as addition reaction. So how many types of addition reaction are there? There are three types. First one is the electrophilic addition reaction, second one is the free radical addition reaction, and the third one is the nucleophilic addition reaction. In the first class of the reaction mechanism, I have told you that electrophiles and free radicals are the electron deficient species. Why? Because in the valence shell of an electrophile there are 6 number of electron and for the free radical there are 7 number of electrons. So these are the electron deficient species. So electron deficient species कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते क्योंकि वो लोग खुद गरीब है, इलेक्ट्रॉनिकली वो लोग क्या है, गरीब है. तो उनके ऊपर कौन अटैक करेगा? नहीं, सबस्ट्रेट अटैक करेगा. ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट क्या है, वो अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली गरीब है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या होगा, रीच होगा, इलेक्ट्रॉनिकली सफिशिएंट होगा, और ये इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, डेफिशिएंट होगा. तो इन द फर्स्ट टू केस बच्चा पार्टी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, सबस्ट्रेट मोस्टली अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल एंड द फ्री रेडिकल. एक्चुअली फ्री रेडिकल में कोई किसी को अटैक नहीं करता, वो एक्चुअली रिएक्शन एनवायरमेंट दोनों को मिला देता है क्योंकि वहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होके फिर होमोलाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ठीक है, वो लोग अभी देखेंगे, लेकिन फॉर द convenient of understanding, since both the two species, that means the electrophile as well as the free radical are electronically deficient, so वहाँ पे हम लोग conventionally ये बोल देते हैं कि substrate electrophile और free radical के ऊपर अटैक करेगा. ठीक है, बट इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द सबस्ट्रेट. दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है, तो सबस्ट्रेट के ऊपर वो अटैक करेगा. ठीक है, तो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा या फिर एनर्जी होगा उसका मन उतना ही चंचल होगा. अगर पेट पॉकेट खाली है तब तुम आराम से शांति से बैठ जाओगे. ठीक है, इसी का सेम लॉजिक है. अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आपको बताना है बच्चों, जो कि जनरली कॉम्प्रिहेंसिवली हम एंट्रांस क्लासेस में बताते हैं कि रीअरेंजमेंट बहुत कॉमन है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रीअरेंज ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट हैपेंस टू अटेन स्टेबिलिटी. तो इसीलिए आप लोगों को जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल या फिर कार्बोएनायन, तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर को हमेशा याद रखना कि टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल, एंड फॉर द रेस्ट आई हैव रिटन डाउन द ऑर्डर. तो स्टेबल प्रोडक्ट अटेंड करने के लिए ये रीअरेंजमेंट होता है. इसलिए आप लोग जो पूछते हो ना, सर मेजर प्रोडक्ट कैसे हो गया, माइनर कैसे होगा, क्योंकि वो मेजर एक रीअरेंजमेंट के थ्रू आया होता है, क्योंकि उसको क्या अटेंड करना है, स्टेबिलिटी अटेंड करना है. इसीलिए ये ऑर्डर को अच्छे से याद कर लो. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन.
सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ देखने को मिलता है? नहीं सर, हमको हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार होते हैं? नहीं सर, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हो गया अल्केन, उसके बाद हो गया अल्कीन, और लास्ट में हो गया कौन? अल्काइंस। आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था अल्कीन एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बट अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है? वहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है? कार्बन एंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड की जर्नी हम एक एडिशन रिएक्शन के तहत अटेंड करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। सिंस alkenes and alkynes have loosely bonded pi electron, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन को हम लूजली बॉन्डेड क्यों बोलते हैं? उसका भी रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ड्यू टू द साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगर आप लोगों को पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड के प्रकार भेद में सबसे पहले आता है सिग्मा, देन पाई, देन कोवेलेंट बॉन्ड, देन द बैक बॉन्डिंग, और बाकी जो भी इंटरेक्शंस होते हैं वो भी किसी भी तरह से कोवेलेंसी की तरफ अटेंड करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया या फिर वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मोस्टली अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड के प्रकार एंड भेद में हम देखते हैं तो उसमें हम सिग्मा एंड पाई को देखते हैं। अगेन सिग्मा एंड पाई से हम लोग पहले देखते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, जो कि हमको सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देता है, और उसके बाद जितने भी नेक्स्ट बॉन्ड हो मतलब बाकी बॉन्ड होते हैं वो सब क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड्स बोलते हैं। इसीलिए अगर दो स्पेसिस हैं, सपोज यहाँ पे बी लिख देता हूँ, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ए एंड बी के बीच बस एक ही बार हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकता है और वहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, और बाकी जो भी आएगा वो सब क्या है? पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड and this is the pi bond. The first relation between the two species in the covalency term is the sigma. Any other relation जो भी सिग्मा के बाद आएगा वो सब क्या होगा? पाई होगा। इसीलिए सिग्मा रिलेशन, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है रिलेटिवली टू द पाई बॉन्ड। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम इसका जो फॉर्मेट है उसको देखते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मेट? दिस इज द अल्कीन सी डबल बॉन्ड सी, एंड दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट ए एंड बी, और अटैकिंग रिएजेंट में भी पोलराइजेशन हो रहा है, इसलिए मैंने सपोज ए को नेगेटिव और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कर दिया है और बी को पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कर दिया है। तो ये होगा उसका जो एडिशन प्रोडक्ट, जिसमें कि ए एक कार्बन को लगा हुआ है और बी एक दूसरे कार्बन को लगा हुआ है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपन? सिंस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इज द पॉजिटिव पार्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इज द नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट को ही सबस्ट्रेट अटैक करेगा। लेकिन सबस्ट्रेट में यहाँ देखो पाई बॉन्ड यहाँ पे लूजली हेल्ड है, इसलिए पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज हैपनिंग। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर जा रहा है, मतलब अभी ये कार्बन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव स्पेसिस हमेशा किसको अटैक करता है? पॉजिटिव स्पेसिस, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, दैट मीन्स द इलेक्ट्रोफिलिक। सिंस द सबस्ट्रेट इज अटैकिंग टू द इलेक्ट्रोफाइल, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसीलिए ये स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप। एंड हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है स्लो स्टेप्स आर द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये इसीलिए इसका जो नेक्स्ट स्टेप हो रहा है क्या हो रहा है? C प्लस C E एंड द वैकेंट। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इसी वजह से ये कार्बन नेगेटिव हुआ, और ये नेगेटिव किसको अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल को अटैक किया, और इसी वजह से ये पहला कार्बन में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। ठीक है, तो नाउ इट इज ए कार्बोकैटायन। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? जो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, जो अभी ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉन को लेके ये बॉन्ड टूट गया है, वो अभी ये प्लस चार्ज के ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर बहुत ही आसानी से अटैक करेगा। सो हेंस द सेकेंड स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन is directly proportional to the stability of carbocation formed in the rate determining step। अगर ये कार्बोकैटायन एक 3 डिग्री है, देन वहाँ पे
और अच्छे से होगा, अगर 2 डिग्री है या फिर प्राइमरी है देन वहाँ पे रिलेटिवली लोअर होगा। ठीक है, एच मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कितने भी एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला है क्या, एडिशन ऑफ H2। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, तो क्या होगा इसमें भी देखो C डबल बॉन्ड CH2, तो H2 मॉलिक्यूल में भी H है, तो ये पहले इसको जाएगा और ये इसको अटैक करेगा, तो ये कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो आखिर में हमको क्या मिलेगा CH2 प्लस CH3। अभी जो H माइनस मतलब हाइड्राइड होगा वो किसको अटैक करेगा, ये कार्बोकैटायन को अटैक करेगा, और हमको क्या मिलेगा इथेन। सो प्रिपरेशन ऑफ इथीन टू इथेन। ठीक है, ठीक वैसे ही अल्काइंस में भी देख लो, अल्काइंस में ये क्या है, प्रोप 1 इन, उसको भी अगर हम 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं तो पहले सबसे पहले वो उसका एक पाई बॉन्ड जा रहा है, और अब सेकेंड स्टेप में उसका दूसरा भी पाई बॉन्ड जा रहा है, और हमको एक क्या मिल रहा है, प्रोपेन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन में ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देख लो। सबसे पहला, आयोडीन नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं दिखाता, मतलब उसको एडिशन होने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टेम्परेचर या प्रेशर चाहिए, मतलब रिएक्शन कंडीशन नॉर्मल्स में वो रिएक्शन नहीं दिखाता। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोगों देखेंगे क्या, ब्रोमीन। अगर हम इथिन को ब्रोमीन के साथ टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि CCl4 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, देन हमको एक विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, विसिनल का मतलब याद है ना, दोनों ही कार्बन में लगेगा, मतलब 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये हो गया विसिनल डाइहैलाइड। जो बच्चे मेरा नोमेनक्लेचर वीडियो देखे होंगे वो लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड दिस इज सिस टाइप आइसोमर, सिस टाइप कॉन्फर्माउंड। ठीक है, तो सिस टाइप जो है मतलब एक ही साइड, सिस और ट्रांस, अगर मैं आप लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दूं, तो अगर किसी भी डबल बॉन्ड या फिर कार्बन का एक ही साइड पे सेम ग्रुप लगा है, देन हम उसको सिस या फिर सिन टाइप बोलते हैं। वो अगर मैं आप लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसका प्रकार भेद बोलूंगा, कहाँ पे सिस बोलते हैं, सिस एक्चुअली डबल बॉन्ड के अराउंड बोलते हैं, और ये जो एडिशन प्रोडक्ट है ये सिस है, मतलब सेम डायरेक्शन में ब्रोमीन लगा है। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमको ये पाया गया है कि इसमें जो ट्रांस प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये देखो, मतलब कुछ इस तरह से ब्रोमीन CH2 ब्रोमीन, इस तरह का जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। कहाँ पे, यहाँ पे जब एक इथिन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है CCl4 के प्रेजेंस में, तो ट्रांस प्रोडक्ट हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है, और वो ही ज़्यादातर स्टेबल होता है। वो क्यों होता है, ड्यू टू द डायपोल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे डायपोल मूवमेंट, नेट डायपोल मूवमेंट 0 होता है, तो वो क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट बैठता है, इसीलिए वो ट्रांस प्रोडक्ट मेजर होता है। तो यहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म है, यहाँ पे बच्चों 2 मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म है ये जो कि हमको सिस प्रोडक्ट कैसे हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और ये दूसरा मैकेनिज्म है जो कि ट्रांस प्रोडक्ट मतलब ट्रांस एडिशन, एंटी एडिशन जो मेजर प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को अभी हम देखते हैं। सबसे पहला जो है वो सिस एडिशन और सिन एडिशन, देखो वो सेम प्रोसेस है। सबसे पहले ब्रोमीन में देखो पोलराइजेशन हो गया, डेल प्लस डेल माइनस, तो अभी यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्लस पे अटैक किया और ये चला गया, और यहाँ पे देखो एक कार्बोकैटायन आ गया रिएक्शन इंटरमीडिएट, और उसको वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट Br माइनस अटैक करके सेम डायरेक्शन से हमको डिजायर्ड सिस प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। उसके बाद ट्रांस में हम देखते हैं, देखो ट्रांस में क्या होता है, ये एक साइक्लिक हेलोनियम आयन हमको रिएक्शन इंटरमीडिएट में मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो पहले ब्रोमीन में पोलराइजेशन हो रहा है Br प्लस Br माइनस, मतलब Br प्लस Br माइनस। वहाँ पे देखो ये जो ब्रोमीन है वो अटैक कर रहा है किसी को, एक कार्बन को, मतलब ये ऐसा आ गया, ये यहाँ पे अटैक कर रहा है। जो फर्स्ट स्टेप है वो सिमिलर है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन को यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमीन पार्ट था
ब्रोमाइड पार्ट था वो अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ये ब्रोमीन का लोन पेयर है वो एज एन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके ये कार्बोकैटायन को अटैक कर देता है। और यहाँ पे हमको एक साइक्लिक हेलोनियम आयन हमको देखने को मिलता है। क्या मिलता है? साइक्लिक हेलोनियम आयन। ठीक है। और उसके बाद अब जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, इसको द नेगेटिव पार्ट अटैक करके ये ब्रोमीन फिर सेकंड कार्बन के पास चला जाता है और हमको एक एंटी एडिशन के तहत एक ट्रांस प्रोडक्ट, जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है इस एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन में, वो देखने को मिलता है। ठीक है। तो एक्चुअली इस तरह के सवाल आप लोगों को ज़्यादातर नीट या पे जेई में देखने को मिलेगा। बोर्ड्स में आपको बस रिएक्टेंट दिया होगा, अटैकिंग रिएजेंट दिया होगा, रिएक्शन मीडियम दिया होगा और प्रोडक्ट लिखने को मिला होगा, लिखने को बोलेगा। उसमें से मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा, ये आपका बोर्ड्स लेवल में आएगा। इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो टेस्ट अभी हम लोगों ने जिसका मैकेनिज्म अभी समझा, ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? दिस इज द टेस्ट फॉर द ऑन सैचुरेशन। मतलब ये वही सॉल्यूशन है, मतलब ब्रोमीन सॉल्यूशन है जो कि आपको ऑन सैचुरेशन के लिए टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होता है? जो रेडिश ऑरेंज कलर होता है ब्रोमीन सॉल्यूशन का इन टेट्राक्लोरोमीथेन, वो जब एडिशन होकर प्रोडक्ट देता है वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, वो कलरलेस हो जाता है। दैट मीन्स अगर वो कलरलेस हो गया मतलब वहाँ पे ऑन सेचुरेशन था और वहाँ पे सेचुरेशन होने के कारण वो कलर डिस्कलर हो गया। लेकिन अगर वो कलर डिस्कलर नहीं होता है, मतलब ये जो पेरेंट एटम था जो सब आप लोग ले लिए हो, उसमें ऑन सेचुरेशन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है। सो ये ब्रोमीन इन टेट्राक्लोरोमीथेन, ये जो सॉल्यूशन है इसको हम टेस्ट फॉर ऑन सेचुरेशन के लिए लेते हैं। और ये इसका दो टाइप का मैकेनिज्म, जिसमें कि एक मेजर प्रोडक्ट सीस को एक्सप्लेन करता है, माइनर प्रोडक्ट सीस को एक्सप्लेन करता है और मेजर प्रोडक्ट ट्रांस को एक्सप्लेन करता है। तो ट्रांस में मोड ऑफ एडिशन इज एंटी एंड इन द सीस प्रोडक्ट द मोड ऑफ एडिशन इज सिन, whereas the reaction intermediate in the cis product is a normal carbocation, whereas in the trans product what is the reaction intermediate? A cyclic helonium ion। ठीक है। आपके एनसीईआरटी क्लास 11th में, ये क्लास 11th का है बच्चों, वहाँ पे बस ये वर्ड लिख दिया है साइक्लिक हेलोनियम आयन और वहाँ पे लिख दिया है कि ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, लेकिन ये देखो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अल्काइंस में कैसे होता है। CH3 C111CH Br2 CCl4। तो अगेन ब्रोमीन जैसे ऐड होगा, दोनों तरफ से ऐड होगा, फिर और एक बार ब्रोमीन दे दोगे तो चारों ही तरफ ब्रोमीन लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? 1122 टेट्राब्रोमो इथेन। क्या मिलेगा? 1122 टेट्राब्रोमो इथेन। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट, ये आपका 12th का है, हेलो अल्केन्स चैप्टर का। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्किन्स एंड ऑन सिमेट्रिकल अल्किन देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, जिसका कि प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है? CH3 CH2 Br। ठीक है। और अल्काइंस में भी, अल्काइंस का जो ये एडिशन रिएक्शन है, इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वहाँ पे आपको जेम डाइहेलाइड मिलता है। जेम मतलब एक ही कार्बन में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो विसिनल डाइहेलाइड मिल रहा है और यहाँ पे आपको जेमिनल डाइहेलाइड मिल रहा है, मतलब 1,1 डाइब्रोमो हेलाइड डाइब्रोमो इथेन और यहाँ पे 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन को विसिनल डाइहेलाइड बोलेंगे और 1,1 डाइब्रोमो इथेन को क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहेलाइड। लेकिन जेमिनल कहाँ से मिल रहा है? अल्काइन से मिल रहा है, अल्काइंस प्लस HBr। लेकिन विसिनल कहाँ पे मिल रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 CCl4। तो बच्चों अगर आप लोगों को डायरेक्ट बोल दिया जाए कि जेमिनल और विसिनल डाइहेलाइड कैसे प्रिपेयर करोगे, देन ये हो गया उसका आंसर। इसलिए मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, 12th में 11th का पूरा एप्लीकेशन है। तो जब तक आप 11th का बैकवर्ड लिंकेज नहीं समझ में आएगा, देन 12th इज मीनिंगलेस। इसीलिए आपको बस 12th रटना जैसा लग रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर आपको ये पता है, देन दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर वेरी इजी। ओके, नाउ लेट्स सी द एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन हैलाइड टू ऑन सिमेट्रिकल अल्केन्स, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे एक सिमेट्रिकल एक्सिस या फिर प्लेन ऑफ मिरर पास कर दूं, देन दोनों तरफ आपको सेम मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक सिमेट्रिकल अल्किन्स है। यहाँ पे भी सेम, लेकिन जब ऑन सिमेट्रिकल अल्किन्स के बाद आ रहा है देन वहां पे एक नया रूल आता है जिसको कि अभी हम समझेंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे अगर मैं एक मिरर रख दूं देन यहाँ पे हमको CH2 ग्रुप देखने को मिल रहा है, मतलब एक कार्बन, और यहाँ पे दो कार्बन CH3CH देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज ए ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन। ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन में अभी हम क्या ऐड करने वाले हैं, HBr, और आप लोगों को पता होगा HBr में H डेल प्लस होगा और Br डेल माइनस, क्यों, फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज आप लोगों को बताया था, फोकल NBr SCIPH बताया था आपको। इसको हर रोज सुबह 3 बार, शाम को आफ्टरनून में 3 बार और रात को 3 बार रटना है। ठीक है, तो अभी देखो इसका प्रोडक्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये H को अटैक करेगा तो कार्बोकेटायन यहाँ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस तरफ जाके ये H को खाएगा और कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। देखो उसका जो मैंने प्रकार भेद यहाँ पे कर दिया है। तो सबसे पहले ये कहाँ पे गया, H को खाया तो कार्बोकेटायन कहाँ पे आ गया, प्राइमरी मतलब टर्मिनल में। लेकिन सेकंड में ये अगर H प्लस को खा रहा है देन कार्बोकेटायन कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंडरी में। ठीक है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये इसके पास दोनों ही जगह जाने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, आइदर टर्मिनल में जाके अटैक कर सकता है या फिर बीच में जाके फिर अटैक कर सकता है। अगर बीच में जाके अटैक कर रहा है तो कार्बोकेटायन टर्मिनल में फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर ये टर्मिनल की तरफ माइनस होके H को अटैक कर रहा है देन कार्बोकेटायन कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, बीच में। तो देखो जब बीच में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है वो एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, लेकिन अगर टर्मिनल में फॉर्मेशन कर रहा है देन वो एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है। और आप लोगों को पता होगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए जहाँ पे कि 2 ब्रोमोप्रोपेन है, मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन लगेगा, जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है ये इसका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, और 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, और यही पर्टिकुलर रूल को हम क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल। क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल। तो मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल में जो रीअरेंजमेंट होता है वो H पर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, लेकिन इसका जो रूल है वह क्या बोलता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम मतलब कौन है नेगेटिव पार्ट, Br माइनस, H प्लस डेल प्लस है तो ये नेगेटिव पार्ट कौन है, Br माइनस, gets attached to that carbon which possesses lesser number of hydrogen। तो lesser number of hydrogen कौन है, ये डबल बॉन्ड के पास ये है, तो यहाँ पे जो अटैक करेगा वही होगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन ये उसका मैकेनिज्म है जो कि एक रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट है उसको हम एंटी मार्कोनिकोव एडिशन बोलते हैं, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, या फिर कार्स इफेक्ट बोलते हैं। एक्चुअली ये जो प्रकार है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर नहीं आता, वो किसके अंदर आता है, फ्री रेडिकल एडिशन के अंदर आता है। और ये जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है उसका जो एग्जाम्पल है वो बस यही एक है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, बस एक ही है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो चलो अभी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है वही मैंने आप लोगों यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 1 प्रोपीन प्लस HBr, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया है, बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड इफेक्ट जो है उसके लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। और ये मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड करेगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के तरह प्रोसीड करेगा। और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, जो कि मार्कोनिकोव्स एडिशन में क्या होता था, माइनर प्रोडक्ट होता था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना बहुत जरूरी है, इट इज एन एक्सक्लूसिव एडिशन फॉर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड नॉट शोन बाय HCl एंड HI। HCl एंड HI अगर ये रिएजेंट में दिया है देन यहाँ पे नहीं होगा, बस किसके लिए होगा, HBr के लिए होगा। ठीक है, अभी इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म।
तो मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एक्चुअली बच्चों 3 स्टेप होता है। सबसे पहले होता है इनिशिएशन, उसके बाद होता है प्रोपागेशन और लास्ट में टर्मिनेशन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि करते हैं, इनिशिएट करते हैं, विष्णु जी प्रोपागेट करते हैं, पालन करते हैं, और महेश टर्मिनेट करते हैं, मतलब संगार करके खत्म कर देते हैं। बस यही सेम प्रिंसिपल है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले इनिशिएटर एक होता है। तो इनिशिएटर कौन होता है? बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड में यहाँ पे होमोलाइसिस होता है और आप लोगों को क्या मिलेगा? ये देखो 2C6H5 फिनाइल 2 फिनाइल रेडिकल आपको मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद होमोलाइसिस में ये HBr H डॉट Br डॉट जो कि C6H5 फिनाइल इनिशिएटर के तहत आपको Br डॉट मिल गया और ये बेंजीन हो गया C6H6। तो अब ये हो गया Br डॉट जो कि आगे रिएक्शन में जाके प्रोपागेट करेगा। तो प्रोपागेशन स्टेप में क्या हो रहा है? ये डबल बॉन्ड देखो टूटेगा। ठीक है। तो अगर टर्मिनल के तरफ फ्री रेडिकल गया दैट मीन्स ये क्या हो गया? प्राइमरी फ्री रेडिकल। लेकिन अगर बीच में आया देन ये क्या हो गया? सेकेंडरी फ्री रेडिकल, क्योंकि ये अटैच होगा ना। 2 अपॉर्चुनिटीज है। अगर ये बीच में अटैक हो गया ब्रोमीन देन आपको प्राइमरी फ्री रेडिकल मिलेगा। लेकिन टर्मिनल में अगर यहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों मिलकर अगर बॉन्ड बना रहे हैं देन आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ठीक है। अभी आप लोगों को पता होगा फ्री रेडिकल में भी टॉर्सियरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो इसीलिए ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये प्राइमरी फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट से ज़्यादा स्टेबल है। और इसीलिए जो अगेन हम HBr देंगे H डॉट Br डॉट और ये जो अटैच होगा ये भी H डॉट Br डॉट और ये H यहाँ पे अटैच होगा। तो जो मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा? यहाँ पे देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन और यहाँ पे क्या है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे मैंने बच्चों थोड़ा उल्टा लिख लिया है, सॉरी। ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। दिस विल बी माइनर एंड दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। एंड दिस इज नथिंग अबाउट योर एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और कार्स इफेक्ट। एक साइंटिस्ट थे। ठीक है। तो इस हिसाब से कहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर हो रहा है और कहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर हो रहा है, वहाँ पे 2 नियम है। जहाँ जो आयोनिक फॉर्मेट में या फिर पोलराइजेशन फॉर्मेट में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के मैकेनिज्म में आ रहा है और कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो रहा है, वहाँ पे आप लोगों को 2 ब्रोमोप्रोपेन देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ पे आप लोगों को होमोलाइटिक या फिर नॉन पोलर मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है और जिसमें कि आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट एक फ्री रेडिकल है, वहाँ पे आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। And these particular 2 effects are known as Markovnikov's as well as anti-Markovnikov's addition respectively. But anti-Markovnikov's addition को पेरोक्साइड इफेक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक इनिशिएटर के तहत पेरोक्साइड को लिया जाता है। और कार्स इफेक्ट इसीलिए बोलते हैं कि यही वो साइंटिस्ट थे जो कि HBr को लेके ये एक्सपेरिमेंट किए थे और ये HCl और HI के द्वारा नहीं दिखाया जाता। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है। Addition of water. So in addition of water to both alkenes and alkynes, it follows the Markovnikov's rule. So as per Markovnikov's rule, the negative part of the addendum goes to that particular carbon which contains lesser number of hydrogen. ये देख लो। ठीक है। तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि 2 मिथाइल प्रोपीन को अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं देन हम वहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल पा रहे हैं। ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी कैसे होगा? पहले ये ऐसा जाएगा, ये H+ को खाएगा, फिर OH- आके इधर अटैक करेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया है। लेकिन जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइंस होता है बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के तहत आता है। इसका मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक होता है। लेकिन OH- टू अल्किन्स ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। मैंने बस हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पे हो रहा है, एक ही हेडिंग के अंदर दोनों आएगा, इसीलिए आपने एक साथ लिख दिया है। ठीक है। लेकिन वो ट्रिक सेम है। मार्कोनिकॉव्स रूल को अगर आप अच्छे से देखो देन यहाँ पे भी आप वही सेम OH- को आप लेसर नंबर ऑफ
हाइड्रोजन बियोरिंग कार्बन पे अटैच कर सकते हो। ये तो सिमेट्रिकल है, यहाँ पे देख लो ये अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल में अगर OH माइनस आप लगा रहे हो, कहाँ पे लगाओगे, ये देखो यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, देन यहाँ पे OH लग गया, तो एक डबल बॉन्ड के बजाय एक OH आ गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। लेकिन इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, कीटो इनोल टोटोमोरिज्म, क्या कर रहे हैं, कीटो इनोल। यहाँ पे क्यों ऐसे बोल रहा मैंने, ये देखो ये हो गया इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए ऑल, तो ये हो गया इनॉल। और ये क्या है, कीटो फॉर्म, तो इसको बोलते हैं इस टाइप ऑफ मोलिकुलर रीअरेंजमेंट को कीटो इनोल टोटोमोरिज्म। एंड नेचुरली कीटो फॉर्म्स आर मच मोर स्टेबल देन दैट ऑफ इनॉल फॉर्म, समझ लेना, ठीक है। इसीलिए दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इनडायरेक्टली, हाउ कैन यू प्रिपेयर कीटोन और कॉरेस्पॉन्डिंग aldehyde from the alkynes. You can simply write the hydrolysis by in the presence of mercury Hg2+. ओके, नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये तो आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे से याद रख लो, लेकिन आपको लिखना है तो दोनों को लिख सकते हो। ये देखो, जब एसिटिलीन को हम रेड हॉट आयरन ट्यून में बहुत हीट करते हैं, देन यहाँ पे एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होके बेंजीन हमको मिलता है, ठीक है। सो यू कैन राइट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, दैट मीन्स अल्काइंस और एसिटिलीन, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वही अगेन हाइड्रोलिसिस कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट, देन यू विल गेट डायोल, यू विल गेट डायोल, मतलब दोनों जगह डबल बॉन्ड के दोनों जगह आपको क्या मिलेगा, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप डबल बॉन्ड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एसिडिक मीडियम पे अगर आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो, देन यहाँ पे आपको कोरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कोरेस्पॉन्डिंग कीटोन मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ पानी भी मिलेगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप ब्यूट 2Ne को भी अगर आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो, देन आपको इथानोइक एसिड मिल रहा है, ठीक है, इथानोइक एसिड मिल रहा है। तो ये दोनों का नीचे को थोड़ा अच्छे से याद रख लेना। लेकिन डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट है, देन यहाँ पे आपको डायोल मिलेगा। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम में अगर ऐसा है, देन आपको ऐसे सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स को थोड़ा रटना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपका मेकानिज्म नहीं है सिलेबस में, और दिस विल बी वेरी लेंथी फॉर यू एज वेल, ठीक है। नहीं तो मैं आपको मैकेनिज्म बता सकता था, लेकिन मैकेनिज्म बताने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस में नहीं है और ये बहुत लेंदी होता है, ठीक है। बस आप लोग याद रख लो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन को। देन ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना, मैकेनिज्म में जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखे वहाँ पे एक मंदिर बना देना है। ऑक्सीजन O3 मतलब 3 ऑक्सीजन, मंदिर बनाओ। कैसे मंदिर बनाना है, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग जैसा लगना चाहिए। कैसा लगना चाहिए, 5 मेंबर्ड रिंग जैसा लगना चाहिए, ठीक है। ये एक बार जेई में पूछा भी था कि ऑन ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स डेक्स मेंबर्ड साइक्लिक रिंग इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, आंसर विल बी 5, ओके। एंड अगेन ऑन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इट विल गिव्स यू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। तो इसका ट्रिक देखो, डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ बस एक एक ऑक्सीजन लगाओ। अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाओगे तो यह क्या होगा, CH3CHO, CH3CHO, ये क्या हो गया H2CO, मतलब क्या HCHO, ये देखो HCHO हो गया आंसर। अनसिमेट्रिकल में देखते हैं, वैसे तो दोनों ही अनसिमेट्रिकल है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, पहले मैकेनिज्म कर लेते हैं, लगा लो मंदिर, हाँ, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर गया तो क्या हो गया प्रोडक्ट, देखो डबल बॉन्ड ओ, ये दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगाओ, ये क्या हो गया CH3CO CH3, और ये क्या हो गया SCHO, देखो प्रोडक्ट निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ठीक है। सबसे पहले है इन अल्काइंस, दैट मीन्स द हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ एंड H2SO4, जिसमें कि 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4 है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया था। ये जो न्यूक्लियोफिलिक है, इसका मैकेनिज्म अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो ये जो अल्काइन है,
इसको मर्क्यूरी के ऊपर ये अटैक कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है और ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है मेटल है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह का एक रिएक्शन इंटरमीडिएट देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे एक साइक्लिक हाइग्रोनियम आयन, Hg को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोनियम आयन, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और H2O एंटी अटैक करता है, ठीक है। ये एंट्रांस के सवाल में पूछा जाता है कि द अटैक ऑफ वाटर इज फ्रॉम व्हिच साइड। अगर ऑपोजिट साइड से हो रहा है देन इसको हम बोलेंगे एंटी, सेम साइड से अगर होता देन उसको क्या बोलते, सिन बोलते। लेकिन यहाँ पे एंटी अटैक होता है, एंटी एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। एंटी एडिशन ऑफ वाटर होने के बाद ये देखो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, मतलब प्लस चार्ज आ गया। अभी इसको ऑक्सीजन बीइंग ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज containing positive charge will be very difficult and unstable, so it will get consumed by the following hydrogen और ये न्यूट्रल होके ऐसे OH हो जाएगा। अभी अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एटमोस्फेरिक हाइड्रोजन दे के ये Hg+ को निकाल रहे हैं और इसको क्या बना रहे हैं, RCOH CH2। अगेन दिस पर्टिकुलर इनॉल क्यों हुआ, ये देखो अल्कोहलिक ग्रुप और ये डबल बॉन्ड, ये कीटो इनोल टोटोमरिज्म के तहत ये देखो ये डबल बॉन्ड से टूट रहा है और ये ऊपर जा रहा है और ये आपको कीटो फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक कीटो इनोल टोटोमरिज्म हो रहा है, एक साइक्लिक हाइग्रोनियम आयन हो रहा है और एंटी एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, ठीक है। एंड यू विल गेटिंग ए कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइंस, ठीक है। नेक्स्ट जो कि आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसके अंतर्गत ये आता है। देखो कैसा होता है, दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कार्बन एंड यू नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ कार्बन, सो देयर इज ऑलवेज ए पार्शियली पोलराइजेशन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन जब भी एक अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल आ रहा है देन इट विल बी वेरी इजी टू सेपरेट द आयन। जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस के तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाएगा, ठीक है। एंड यू विल गेट न्यूक्लियोफाइल एडेड कार्बन एंड O-, एंड ये O- कॉरेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा रिएजेंट का उसको अटैक करके आपको ये प्रोडक्ट देगा। सिंस द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज द स्लोएस्ट स्टेप दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। एंड द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट टू द ऑक्सीजन इज द फर्स्ट स्टेप। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं और मैकेनिज्म करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो सब अभी आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से याद आ जाएगा। इसको स्टार लगा लो बच्चा पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो CH3COCHO मतलब एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में कौन अटैक करने वाला है, H+ और CN-। तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन हो गया, CN- आ गया, ये डबल बॉन्ड ऐसा चला गया तो आपको क्या मिला CH3CO- HCN। अभी ये हो गया इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, O- इसको अटैक कर रहा है तो CH3CH नीचे CN ऊपर OH। दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज सियानोहाइड्रीन। दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज सियानोहाइड्रीन। अगर आप लोग सियानोहाइड्रीन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 के साथ रिडक्शन कर रहे हो, दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नॉट वेरी वीक, ठीक है। तो दिस इज ए माइल्ड काइंड ऑफ ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस इज ए वेरी एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट। मेरा आपके लिए एक रिएजेंट का भी एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो वहां पे आप लोग क्या देखने को मिल रहा है, ये OH ग्रुप अनइफेक्टेड रह रहा है, लेकिन ये जो CN बॉन्ड है, CN बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C∼N ऊपर क्या है CH, इस तरफ CH3 और ऊपर OH है, ये है सियानोहाइड्रीन। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा CH2 and NH2, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड यू विल गेट ऑन रिडक्शन ऑफ सियानोहाइड्रीन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगेन सियानोहाइड्रीन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि यहाँ पे एक जगह होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एक जगह होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस।
तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस को कैसे पहचानोगे, एक ही H2O इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होगा, लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे पहचानोगे, सवाल में 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस दिया होगा, या फिर H2O इन प्रेजेंस ऑफ बेस मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस, H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट मीन्स कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आपको सवाल में बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, इसको और भी क्या लिखते हैं, बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, और इसको क्या बोलेंगे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। तो ये सवाल में आपको आ सकता है। ठीक है, बस ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी को अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हो देन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक एमाइड मिलेगा CONH2। ये देखो, ये जो CN ग्रुप था वहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है, CONH2, एंड दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टामाइड। क्या बोलते हैं, लैक्टामाइड। या फिर अगर आप IUPAC नेम इसका देखोगे देन इसका नाम क्या होगा, ये देखो 1 पोजिशन 2 पोजिशन 3 पोजिशन क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानामाइड, प्रोपानामाइड, क्योंकि एक एमाइड ग्रुप है CONH2 ग्रुप। ठीक है, और अगर आप इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हो देन, अगर आप एक एमाइड ग्रुप को भी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो देन वहां पे आपको कोरेस्पॉन्डिंग एसिड प्लस एमोनिया मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लैक्टिक एसिड, एंड इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। तो सियानोहाइड्रिन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ HCN टू द एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और उसका फिर क्या है, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस है दैट मीन्स द बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, और एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है मतलब एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। एसिड कैटालाइज्ड में आप लोगों को एक एसिड मिल रहा है, लेकिन बेस में क्या मिल रहा है, कि एमाइड मिल रहा है। और अगर आप इसको रिड्यूस कर रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ देन आपको एक एमीन मिल रहा है, देखो ये CH2NH2। ठीक है, लेकिन ये तो अल्कोहल होगा क्योंकि अल्कोहल का प्रायोरिटी एमाइन से ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे CH2NH2 क्योंकि OH एच रह रहा है तीनों ही केस में, लेकिन चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, नीचे देखो CH2NH2 COOH CONH2। तो बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस में एमाइड, एसिड कैटालाइज्ड और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड और रिडक्शन एमीन। ठीक है, तो सियानोहाइड्रिन का ये तीनों रिएक्शन अच्छे से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन ऑफ NaHSO3। तो यहाँ पे भी वो नेगेटिव पार्ट देखो, SO3Na C के पास लगा है और ऑक्सीजन OH हो गया है। ठीक है, तो SO3Na माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा एंड अगेन O माइनस H प्लस को अटैक करके आपको ये प्रोडक्ट देगा। देन विथ अल्कोहल, अल्कोहल में क्या हो रहा है देख लो, अल्कोहल का ऑक्सीजन में लोन पेयर है एंड लोन पेयर फ्री है मतलब लूजली हेल्ड है, देन वो एक न्यूक्लियोफाइल के तहत कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा। सो आप लोगों को क्या मिल रहा है, RCO माइनस H, नीचे लोन पेयर गया है मतलब पॉजिटिव चार्ज H एंड R। Here oxygen being the more electronegative element containing an a positive charge is very unstable, तो ये ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन को कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे एक H प्लस निकल गया, तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, RCO माइनस HOR। नाउ दिस पर्टिकुलर O माइनस विल अटैक to that particular H plus from HCl, क्योंकि this all these kind of reactions is happening in the presence of an acids। so आप लोगों को ये क्या मिल रहा है, RCOH and OR। this kind of structure is called as hemiacetal structure। क्या बोलते हैं इसको, hemiacetal structure, जो कि अनस्टेबल होता है। इसीलिए यहाँ पे फर्दर अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करके ये देखो मैंने आप लोगों को सिस्टमेटिकली लिख दिया है, अगेन अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ये अल्कोहलिक हाइड्रोजन और दूसरे तरफ का OH में से वाटर मोलिक्यूल एक निकल के यहाँ पे OR हो जा रहा है। ठीक है, OR। देन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एसिटल विच इज रिलेटिवली स्टेबल फ्रॉम दिस हेमीएसिटल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ रिएक्शन विथ सोडियम अल्कानाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अल्कानाइट इज गोइंग टू अटैक द कार्बोनिल कार्बन
and you are getting this kind of format. And the negative part of the oxygen is attacking to the H plus and you are getting this acetylic alcohol. यहाँ पे एक इथाइन ग्रुप है एंड OH ग्रुप है एंड यू ऑल नो दैट द प्रायोरिटी ऑफ OH ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ एसिटिलीन और इथाइन. ठीक है. सो आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नेगेटिव पार्ट गोइंग टू कार्बन, देन ऑक्सीजन ऊपर, उसके नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो रहा है या O माइनस, and this O minus is attacking to the corresponding electrophile and you are getting the product C nucleophile O electrophile. ठीक है. सो इस हिसाब से कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सवाल पक्का है, लिख के लिख लो. ठीक है. और इसीलिए मैंने आपका ये स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है ताकि आप लोगों को यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट लाइन आपको दिखाना है, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई की तरफ से कैसे लाइन बाय लाइन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है देन कैसे क्वेश्चन आके आपको परेशान कर सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इसका प्रिपरेशन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक तरह का 2 मार्क का सवाल आता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो व्हेन एन अल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड is getting treated with magnesium in the presence of dry ether, you are getting RMgX. और इसमें ये चार्ज पूछता है RMgX. X डेल माइनस होता है, R डेल माइनस होता है और Mg डेल प्लस होता है. इसको मैं बच्चों को याद रखने के लिए बोलता हूँ. मैग्नीशियम डाइवैलेंट होता है, 2 प्लस कर लो. हैलाइड -1 होता है और अल्किल -1, तो ये हो गया न्यूट्रल. लेकिन ओवरऑली अगर हम देखें देन इसको कैसे टोटा जाता है, R माइनस किया जाता है एंड MgX प्लस किया जाता है. ठीक है. तो R माइनस और एन MgX प्लस, और यही R माइनस से आप लोगों का क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा. ठीक है. यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब प्रिपेयर करते हैं देन वहाँ पे ड्राई ईथर मीडियम को क्यों लेते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग ड्राई ईथर मीडियम. क्योंकि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे अगर ट्रेसेस ऑफ वाटर मोलिक्यूल या फिर मॉइस्चर अगर थोड़ा सा भी मिल जा रहा है देन वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन मिलेगा, हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं मिलेगा, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. ठीक है. तो इस तरह से ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं. नाउ हाउ इट विल अटैक टू द कार्बोनिल कार्बन. अगेन देख लो, RMgX R माइनस बोला है अभी, ये नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कार्बन में कार्बोनिल कार्बन को अटैक कर रहा है. ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, एडॉक्ट देखो मिल गया, RCO माइनस एंड द MgX पार्ट, द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट. अगेन ऑन हाइड्रोलिसिस दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, हाइड्रोलिसिस में H प्लस है और OH माइनस है, ऑक्सीजन माइनस है तो H प्लस के पास जाएगा, MgX प्लस है मतलब OH माइनस के पास जाएगा. तो ये देखो आप कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल पा रहे हो और यहाँ पे MgOH निकल रहा है. तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ इधर. ठीक है. तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो. HCHO प्लस CH3 MgBr. तो CH3 माइनस पार्ट हो गया, MgBr प्लस पार्ट हो गया, ये ऐसा आ गया. देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी O माइनस MgBr प्लस H एंड CH3 एंड ऑन हाइड्रोलिसिस H2O. यहाँ पे मैं H प्लस लिख दूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, OH माइनस. तो आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, HCH CH3OH प्लस MgOHBr. इसको और हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH. ठीक है. देखो CH3CH2OH, अगर मैं यहाँ पे H के बदले CH3 लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा CH3, और ये एक जो हाइड्रोजन है इसको हम ऐसे लिखते हैं, रुको,
ऐसे है CH3CH2OH। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे देख लो। एक हाइड्रोजन के बदला मैंने क्या लिखा है CH3, तो यहाँ पे मैं एक CH3 लिख देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इस हाइड्रोजन के बदले CH3 लिख रहा हूँ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से गांठ बांध के याद रख लो। जब HCHO था, जब HCHO था, आप लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलता था? CH3CH2OH। CH3CH2OH मतलब दिस इज द अल्फा कार्बन बिकॉज दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, एंड इफ द अल्फा कार्बन कंटेन 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। एंड फॉर्माल्डिहाइड और मिथानॉल ऑलवेज गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल जब भी वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये CH3 के ऊपर ये R या फिर AR कुछ भी हो मतलब नहीं है, सबस्ट्रेट में क्या है वही मैटर करता है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं मिथाइल ग्रुप के साथ, देन वो क्या हो रहा है CH3CHO। तो CH3CHO को जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अटैक करवा रहे हैं, देन हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है CH3OH। कुछ इस तरह से मिल रहा है कंपाउंड। इसको रुको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, CH3NOH। देन यहाँ पे बस एक ही हाइड्रोजन है, देख लो, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो चला गया, इसके बदला अभी क्या आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया। देन दिस अल्फा कार्बन इज नाउ कंटेन ओनली 1 हाइड्रोजन, दैट मीन्स व्हिच डिग्री कार्बन इट इज, this is a 2 degree alcohol. So aldehyde on reaction with Grignard reagent gives secondary alcohol, but formaldehyde, the only aldehyde, that is the formaldehyde or methanol, gives you 1 degree alcohol. But if you are replacing this hydrogen also, that means you are taking CH3 here, so the compound is CH3COCH3। ये हो गया अगर आपका कंपाउंड, देन आपका प्रोडक्ट क्या आएगा CH3CH3 एंड CH3NOH। दैट मीन्स वहाँ पे आपका जो ये अल्फा कार्बन है वहाँ पे 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, मतलब वहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है टर्शियरी अल्कोहल। तो इसको चार्ट कैसे बनाएंगे देखो, फॉर्माल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is equal to 1 degree alcohol. Any other aldehyde plus RMgX secondary alcohol. Ketone plus RMgX is equal to tertiary alcohol. very important। ठीक है, और इसको समझाने के लिए बुक में देखो बस रिएक्शन फॉर्मेट दिया है, लेकिन लाइन अंदर लास्ट में लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है देखो, you will notice that the reaction produces a primary alcohol with methanol, that means the formaldehyde, a secondary alcohol with other aldehydes and a tertiary alcohol with ketones। और यहाँ से सवाल बनते हैं बच्चों, this is very much important। ठीक है, now reaction with glycol, ग्लाइकॉल के साथ कैसे होता है देखो, इसको बस फॉर्मेट के साथ लिखना आना चाहिए। दिस इज द कार्बोनिल कार्बन एंड दिस इज द इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH। यहाँ पे एक कंडेंसेशन के तहत एक वाटर मोलिक्यूल निकल रहा है जो कि आप लोगों को एक साइक्लिक एसिटाल दे रहा है। क्या दे रहा है? साइक्लिक एसिटाल। अभी मैंने आप लोगों को एसिटाल और हेमी एसिटाल का स्ट्रक्चर बताया था, ये उस तरह से साइक्लिक एसिटाल है। ठीक है,
यहाँ पे आप लोगों को मैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप में, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सो ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप में, उसका रिएक्टिविटी क्या होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हमेशा रहता है कि एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, कौन सा रिएक्शन सेंटर, मतलब ये कुछ इस तरह से हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है, डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस। क्यों? ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ कार्बन। तो जब भी यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बाहर से, जब भी एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बाहर से, तब जाके ये पूरा कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है। तो वहां पे पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड ए कीटोन किसका ज़्यादा होता है। तो इसका ये एक 2 मार्कर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखो, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, वन इज स्टेरिक एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक। तो स्टेरिकली क्या है, अगर स्टेरिकली यहाँ पे अगर ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगे होंगे, आर मतलब एक बल्कि ग्रुप है, देन बल्कि ग्रुप मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिकली सफिशिएंट, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली सफिशिएंट है। देन इसको अगर इनके अंदर से जाएगा, देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लैश होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और आप लोगों को पता होगा एल्डिहाइड में बस एक ही बल्कि ग्रुप हो सकता है ड्यू टू इट्स फंक्शनल ग्रुप नेचर, बट कीटोन में 2 होगा। तो कहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, कीटोन में। तो न्यूक्लियोफाइल कीटोन में जाने के लिए ज़्यादा दिक्कत होगा एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। इसीलिए स्टेरिकली देखो यहाँ पे कैसे लिखा गया है, स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ 2 रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन हिंडर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कार्बन देन इन एल्डिहाइड having only one such substituent. Feel the difference. Then electronically aldehydes are more reactive than ketones because 2 alkyl groups reduce the electrophilicity of the carbonyl group more effectively than the former. ये क्या बोला आप लोगों को पता है, R ग्रुप मतलब क्या है, अल्किल ग्रुप आर द इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, प्लस आई ग्रुप में आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर ये जितना ये कार्बोनिल कार्बन जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना आसान होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना। लेकिन अगर अल्किल ग्रुप ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है, मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे के इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बस एक ही आर ग्रुप से आ रहा है, तो ये कम न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब ये ज़्यादा पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव जो हो रहा है उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कौन कर रहे हैं, 2 अल्किल ग्रुप कर रहे हैं बाय प्लस आई इफेक्ट, और न्यूक्लियोफाइल इसलिए यहाँ पे अटैक करना रिलेटिवली पुअर होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज 2 अल्किल ग्रुप्स the two alkyl groups reduce the electrophilicity of the carbonyl group more effectively than the former। ठीक है, और उसके ही नीचे इसका और एक एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे कि ये पूछा गया है कि बेंजाल्डिहाइड वर्सेस प्रोपानॉल। ये हो गया बेंजाल्डिहाइड और ये हो गया प्रोपानॉल। तो बेंजाल्डिहाइड और प्रोपानॉल में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन लेस रिएक्टिव होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है, बेंजाल्डिहाइड विल बी लेस रिएक्टिव। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस डबल सिंगल डबल, ये कुछ मतलब ऑक्सीजन इज बीइंग हेटेरोएटम, तो CHO ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से काम करता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस ऑपरेट होने के बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देख लो बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, और ये डबल बॉन्ड अगेन पॉजिटिव चार्ज को ये बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकलाइज करेगा। मतलब ये कार्बन के पास अभी एक डबल बॉन्ड हो गया,
दैट मीन्स डबल बॉन्ड मतलब ये अगर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर कार्बन एंड कार्बन, इन दोनों के बीच अभी एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया कि नहीं? पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, कहाँ पे? अल्डिहाइड पे, नॉर्मल अल्डिहाइड पे, ये प्रोपानॉल्डिहाइड पे, यहाँ पे एज सच कुछ फेनोमेना नहीं है। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए डिफिकल्टी होगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या फिर रेजोनेंस के तहत यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कार्बन के ऊपर बढ़ रहा है। और इसी को बुक में कैसा लिखा गया है, मतलब लिटरेचर में आप लोग कैसे लिखोगे जब ये 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा? सबसे पहले तो आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी आप लोग अगर ड्रॉ कर सकते हो देन इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव, बिकॉज ऑन ड्रॉइंग ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर यू विल गेट एक्स्ट्रा हाफ मार्क, and for the literature again there is 1.5 marks. So this is a 2 marker question. देखो, the carbon atom of the carbonyl group of benzaldehyde is less electrophilic than carbon atom of the carbonyl group present in propanol. It is due to the polarity of carbonyl group is reduced in benzaldehyde due to the presence of resonance एज सोन बिलो एंड हैंस इट इज लेस रिएक्टिव। ये हैंस सोन इन बिलो जो है उसमें ये स्ट्रक्चर दिया था नेक्स्ट पेज में, इसलिए मैंने बस ये चिपकाया है। तो इस तरह से बुक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ एमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। आप लोगों को मैंने कॉमन नेम का जो मैंने वीडियो करवाया था वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये करवाया था, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब भी एक कार्बोनिल कंपाउंड एमोनिया या फिर एमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है देन ये आपको एक प्रोडक्ट देता है। अगर यहाँ पे एमोनिया है देन वो कार्बोनिल के साथ मिलके आइमिन देगा। अगर सब्सटीट्यूटेड आर है मतलब अल्काइल सब्सटीट्यूटेड एमाइन है देन वो आपको चिप्स बेस यानी कि सब्सटीट्यूटेड आइमिन देगा। ये चिप्स बेस का सवाल हमेशा आता है, और चिप बेस हाउ कैन यू प्रिपेयर ये आपको पूछा जाता है। तो मैं ये चिप बेस से ही स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले फॉर्मेट को पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ द जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। अगर आप लोगों को एक्चुअल मैकेनिज्म जानना है देन यहाँ पे देख लो, नहीं तो इसको हम बहुत आसानी से भी बच्चों को क्लास में बता देते हैं जिन लोगों को थोड़ा लेट में समझ में आता है। सिंपल क्या करना है, H2 निकाल लो ऐसे, और ये हो गया आपको प्रोडक्ट। लेकिन दिस इज द नॉट द राइट वे टू टीच यू, ओके। सो दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म। व्हाट हैपन, द लोन पेयर ओवर द एमीन or substituted amine is behaving as a nucleophile and attack to the carbonyl carbon. So in the next step नाइट्रोजन का लोन पेयर दिया गया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। देखो ये एडिशन प्रोडक्ट हो गया। अब ये O माइनस, ये देखो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको तो न्यूट्रलाइज करना है, तो वो वैसे ही ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। और ये ऑक्सीजन माइनस O माइनस है और ये H प्लस के तरह जाएगा, इसलिए इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये O माइनस H प्लस को खा गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अभी इसके पास क्या है, कार्बन, ये 2 वैकेंसी है। उसके बाद एक जगह पे OH है और एक जगह पे एमीन या फिर सब्सटीट्यूटेड एमीन है। तो यहाँ पे एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है एज एन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो दिस इज एन इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन जहाँ पे कि एक H2O मोलिक्यूल निकल रहा है और कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, द जनरल प्रोडक्ट, एंड दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी एमाइन का एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ठीक है, जिसको कि हम चिप्स बेस बोलेंगे। देखो सबसे पहले हम ले जाते हैं एक कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि सपोज CH3CO ले लेंगे। इसको अभी हम कोई भी एक इथाइल, सपोज इथाइल एमीन ले लेते हैं ETNH2, ठीक है। इथाइल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देन तो एज पर मैकेनिज्म ये ऐसे जाएगा,
क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? मैं डायरेक्टली ये स्टेप पे लिख सकता हूँ ये बीच का दोनों को मैं स्किप कर रहा हूँ। CH3 हो गया। एक तरफ क्या हो गया OH, एक तरफ क्या हो जाएगा NHET. Now this will be comes here and this will be goes out and you will get CH3 double bond NET चिप्स बेस। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये टेबल में जितना भी दिया गया है सबको ऐसे रिएक्शन करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये सारे नाम याद रहेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कर देता हूँ। देखो, अगर यहाँ पे जेड के जगह OH लगा है मतलब ये हाइड्रोक्सिल एमीन आपको देगा। ठीक है, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन। जब ये हाइड्रोक्सिल एमीन कार्बोनिल ग्रुप के साथ लग रहा है मतलब यहां से H2 निकालो, देन क्या होगा C डबल बॉन्ड NOH। दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्साइम एंड यही ऑक्साइम में वही सीन एंड एंटी का जो कॉन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से पूछा जाता है। जैसे आप लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या क्या है, सिस ट्रांस है और वैसे ही सीन एंटी है एंड EZ, ये तीनों ही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्साइम इस तरह से फॉर्मेशन होता है। देन अगर जेड के बजाय NH2 है, NH2 को क्या बोलते हैं हाइड्रोजन। देन हाइड्रोजन से यहाँ पानी निकाल लो तो आप लोगों को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड NH2, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन। ठीक है, अगेन ये NH2 का एक हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे एक फिनाइल रिंग लगा लो, तो ये डायरेक्ट हाइड्रोजन था, अब ये क्या हो गया फिनाइल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा फिनाइल हाइड्राजोन। अभी वही फिनाइल हाइड्रोजन जो था उसका 2 और 4 मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप 2 लगा लो, देन उसका नाम क्या हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजन। तो आपको क्या डेरिवेटिव देगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। और यही वो रिएक्शन है जिस रिएक्शन के वजह से हम लोगों को पता चलता है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट में कि द सब्स्टिट्यूएंट इज कार्बोनिल। तो आप लोग अगर किसी रिएक्शन में सेंटेंस में लिखा है ए कंपाउंड A which gives पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट, उसका मतलब है कि वो ए कंपाउंड 2,4 फिनाइल हाइड्राजोन दे पा रहा है, क्योंकि 2,4 DNP का फुल फॉर्म है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजन। दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है मतलब ए मस्ट बी एन एल्डिहाइड और ए कीटोन, बिकॉज सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड ही 2,4 DNP टेस्ट देते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट अगर यहाँ पे NH एक हाइड्रोजन के बजाय यहाँ पे CONH2 लगा है मतलब एक एमाइड ग्रुप लगा है, देन उसको हम क्या बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड NHCONH2, और इसका जो प्रोडक्ट मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। तो आप लोगों को ये सारा रिएक्शन एक बार लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप ये वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जितने भी प्रकार और भेद थे वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो हमने सबसे पहले एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल एंड न्यूक्लियोफिलिक किया। इलेक्ट्रोफिलिक में हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स में कैसे होता है उसका मैकेनिज्म देखा। ठीक है, और उसमें उसका रिएक्टिविटी भी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से ही डिपेंड करेगा। देन हम लोगों ने मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, ऑन सैचुरेशन टेस्ट, उसको भी हमने पूरा मैकेनिज्म के साथ समझा है। ठीक है, और हाइड्रेशन ऑफ अल्किन से हम कैसे अल्कोहल बना रहे हैं और हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन। देन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन। देन ऑक्सीडेशन, यहाँ पे डाइल्यूट KMnO4 में आपको डायोल मिल रहा है, लेकिन एसिडिफाइड में आप लोगों को कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ठीक है,
ओजोनोलाइसिस का भी मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बस ऑक्सीजन लगाओ या फिर जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे मंदिर बनाओ, ठीक है, एंड यू विल गेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने भी आप लोगों को सारे मैकेनिज्म ये आप लोगों को बता दिया है। ये सियानोहाइड्रिन वाला पहले इंपॉर्टेंट था, उसके बाद अल्कोहल के साथ था, देन अल्किलेनाइड, देन NaHSO3, देन हम लोगों ने ग्रिगनार्ड रिएजेंट किया। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में भी जो 3 तरह के अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होते हैं वो फॉर्माल्डिहाइड, एनीआल्डिहाइड और कीटोन कॉरेस्पॉन्डिंगली होता है, विद मैकेनिज्म उसको एक्सप्लेन किया। ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको भी हमने समझा। देन आखिर में हम लोगों ने रिएक्टिविटी को भी देखा, ग्लाइकोल के साथ मिलकर साइक्लिक एसिटल और ये एमिनिया डेरिवेटिव को अच्छे से कवर अप किया है। अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, प्लीज़ इसको 2-3 बार देखो, ठीक है। एक बार में 1x में देखो अगर पहले बार समझ रहे हो, उसके बाद 1.5x और आखिर में 2x में देखो, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।